मनस्तु सतरूपाय तिस्तकन्यास्य जर्जरे आहुति देवहूतिश्च प्रसूतिरपि विश्रुता। आज हम सब विसर्ग लीला का श्रवण करने जा रहे हैं। विसर्ग लीला ते चारटे प्रकरण আছে যাকে আমরা চার চতুষ্টয় পুরুষার্থ বলি। ধর্ম, अर्थ, काम और मोक्ष। ধর্ম কিভাবে করা উচিত, ধর্ম করতে গিয়ে যেন অধর্ম না হয়ে যায় সেইটা ভাগবতের এই বিসর্গ লীলাতে 7 অধ্যায়তে ধর্ম কিভাবে করা উচিত সেটা রাজা দক্ষ যজ্ঞের মাধ্যমে বলা হয়েছে। कि राजा दक्ष কিভাবে যজ্ঞ করলো। যজ্ঞ অনুষ্ঠান তো খুব বড় করলো, কিন্তু রাজা দক্ষের যজ্ঞটা সফল হলো না। রাজা দক্ষের শিরচ্ছেদন হলো, তার মাথা কাটা গেল। আর ওনারই মেয়ে সতী নিজের প্রাণ ত্যাগ করলেন সেই হবন কুণ্ডে, সেই যজ্ঞশালা। তাহলে ভুলটা কোথায় হলো সেটা আমরা 7 অধ্যায়ের মাধ্যমে ধর্ম কিভাবে করা উচিত এখানে নিরূপণ করা হয়েছে। তারপরে এখানে আমাকে অর্থ যদি পেতে চায়, কোনো কামনা থাকে, বাসনা থাকে, সেইটা কিভাবে পুরো করব, মানে অর্থের প্রাপ্তি কিভাবে করব
সেটা ধ্রুব চরিত্রের মাধ্যমে এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ধ্রুব মাত্র 7 বর্ষের মানে বালক শিশু অবস্থায় কিভাবে ভগবত প্রাপ্তি করলো, যে বাবা নিজের কোলে বসতে দিচ্ছিল না সুরুচি, সে সেই সিংহাসনে বসলো। সেটাও আমরা কিভাবে অর্থ প্রাপ্ত করতে হয়, অর্থ প্রাপ্তির জন্য কিভাবে ভগবত সেবা করতে হয়, সেটা আমরা শ্রবণ করব। তো ভাগবতে প্রথমে সৃষ্টির বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা সবাই জানি এই পৃথিবী এখানে এইভাবে ছিল না। পৃথিবী রসাতলে ছিল। যখন এই পৃথিবী তৈরি হয় তখন পৃথিবীর চারিদিকেই জল, আর এই পৃথিবীর উপরে কবজা করার জন্য হিরণ্যাক্ষ সে তাকে সমুদ্রের ভিতরে নিয়ে যায়। ভগবান বিষ্ণুর নাভি কমল থেকে যখন ব্রহ্মাজি প্রকট হন, আর ব্রহ্মাজি চারিদিকে জল জল দেখতে পান, তখন তিনি কিছুই বুঝতে পারেন না। তখন আকাশবাণী হয়, ব্রহ্মাজি তুমি তপ করো, তপ। এবারে ত আর প তিনি শুনলেন, কিন্তু তপ করবে কিভাবে, কি তপ? তিনি চোখ বন্ধ করে ভ্রিকুটিতে, চোখের মধ্যে যে জায়গা, ওইখানে ভগবানের সেই স্বরূপকে, যে নিদ্রা অবস্থায় ছিলেন, স্মরণ করতে তপ করতে লাগলেন। সেই তপের মাঝে ওনাকে আদেশ হলো যে সৃষ্টির বিস্তার করব। একোহম বহুশ্যাম, মানে এক থেকে আমি যেন অনেক হয়। এটা সাইন্টিফিকলিও বলা আছে, বৈজ্ঞানিক ভাবেও। প্রথমে এক কোশিকা, 1 সেল ডিভিশন, তারপরে আস্তে আস্তে মাল্টিপল, অনেক সেল ডিভিশন হলো। জল থেকে জীবের উৎপন্ন হলো, তারপরে ডারউইনের সিদ্ধান্তে এই সব করতে করতে আমরা আজকে এই মানব সমাজে আছি। আমাদের আদি মানব, মানব থেকে যে ওই দিকে যাচ্ছি না, সায়েন্সের দিকে। কিন্তু যখন ब्रह्मा जी, अच्छा ये बताइए आज तो बंगला ही चलने लगा, हिंदी करें? हाँ वो ठीक है, ताकि बंगला उतनी अच्छी है नहीं, मिला हुआ है। अच्छा তো আসুন ওই ভিতরে প্রবেশ করছি। কালকে আমরা শিবজির চরিত্র দর্শন করলাম, शिवजी का झांकी का दर्शन किए। तो आज राजा दक्ष का चरित्र हम लोग सुनेंगे। तो सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा जी को जो आदेश मिला कि एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हो जाओ, तो उन्हें वे 10 मानस पुत्रों को प्रकट किए। मानसिक पुत्रों मोम থেকে সৃষ্টির प्रारंभ করতে আরম্ভ করলেন। 10 मानस पुत्रों में नारद जी भी एक ब्रह्मा जी के, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारदेर बाबा के होले ब्रह्मा, मानसिक पुत्र, मानस पुत्र। और मध्य सनत, सनंदन, सनत कुमार, नारद जी, अंगिरा, यानी এই 9টা যখন 10টা হলো তো 9 কাক বললো তোমরা সৃষ্টির সঞ্চালন করো। নারদ জি বললো না, আমি তো ভগবানের গুণগান গাই না, আমি বিয়ে করব না। আর যে সনত সনন্দন সনত কুমার, উনিও বললেন আমি বড়ই হব না। যখন বড় হব না তাহলে বিয়ে কি করে হবে? तब जाकर के गुस्सा हो गया, क्रोधित, थोड़ा सा क्रोध हुआ ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से भगवान रुद्र को प्रकट किया। जब रुद्र प्रकट हुए, यानी शिवेरी एक रूप रुद्र, रुद्र माने गुस्सा से, क्रोध से, तो भगवान शिव को कहा कि आप सृष्टि का फैलाव कीजिए, विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी के बोले ठीक আছে। उन्हीं की करले निजेर मते भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, सांप, बिच्छू,
ये सब जितने भी विषैले जंतु जानवर ये सब प्रकट किए। ब्रह्मा जी ने कहा ठहर जाइए, रुक जाइए। अरे ये सृष्टि में इस तरह की सृष्टि हमें नहीं चाहिए, हमें तो कुछ सुंदर बढ़िया और अच्छा सृष्टि चाहिए। ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान को कहा आप बस बैठे रहिए, आप बस ऐसे अपना जप तप कीजिए। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने अपने बाएं भाग से शतरूपा को प्रकट किया और दाएं भाग से मनु महाराज को प्रकट किया। और मनु शतरूपा से कहा कि आप मैथिली सृष्टि प्रारंभ करो। मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई तो मैथिली सृष्टि में 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति, 2 पुत्र उत्पन्न हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। जो मझली बेटी थी देवहूति थी, उनका विवाह करवाए कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि से विवाह हुआ तो भगवान से प्रार्थना किया। कर्दम ऋषि ने कहा आप पुत्र बन करके आएंगे तो हम शादी करेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। और मनु महाराज जब आए शतरूपा अपनी पत्नी और पुत्री देवहूति के साथ, तो ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कह दिया कि देखो विवाह कर लेना, ज्यादा नानुकुर नहीं करना। और हमारी समाज में सबसे बड़ी जो एक समस्या है देवेंद्र जी, कल से देवेंद्र जी को थोड़ा इधर बैठेंगे या उधर तो थोड़ा इनके मुंह से बोल सकेंगे। सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है विवाह करे कि न करे। जब कोई भक्ति के पद पर आता है, सत्संग भजन कीर्तन में आता है, तो प्रश्न ये खड़ा होता है बीए कोड़ा उचित कि उचित न है। अब हमारे देवेंद्र बाबू शादी किए हैं, ये तो किताब लिख देंगे बीए कोड़ा उचित। हम नहीं किए हैं मान लीजिए, तो हम कहेंगे कि नहीं करना उचित नहीं है। तो जो जैसा है वैसा ही अपना दृष्टिकोण रखेगा और सभी सत्य है। एवरीवन इज पार्शियल ट्रूथ, पर टोटली कोई सत्य नहीं है। सब अपनी अपनी तरफ से आंशिक रूप से सत्य कह रहा है। आज देवेंद्र बाबू ने, देवेंद्रनाथ ने हमें एक पुस्तक दिया, समाज सामर्थ्य, और उसका आगे का क्या था, मानुष, मानुष समाज और सामर्थ्य। और एक पुस्तक हम चाहते हैं कि इस पर भी चिंतन करना चाहिए कि विवाह करना है चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गृहस्थ धर्म ठीक है कि नहीं। हमको तो लगता है ये कहेंगे कि नहीं, धन्य गृहस्थ आश्रम। गीता में कहा गया गृहस्थ आश्रम थे के बड़ो कोनो आश्रम नय। और आप नहीं कहेंगे क्योंकि समर्थन बहुमत ज्यादा किसका है, गृहस्थ का। पर क्या सन्यासी बनना आसान है? कामिनी और कंचन से बचना आसान है? हम दलील देंगे ऋषि मुनि, भगवान ने भी तो शादी किया, पर भगवान ने जो शिक्षा दी सृष्टि के विस्तार के लिए किया। पर हम लोग यदि इस बाईपास का रास्ता पकड़ ले तो ये भीड़ वाला झंझट से जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। शांति, मुक्ति, भक्ति के लिए 2 रास्ते हैं, एक है बाईपास और एक है जाम से होकर के शॉर्टकट। अब हमको लक्ष्य तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, बाईपास से कि शॉर्टकट से, ये तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। और हम बहुत भटके, 10 वर्ष तक शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उस पर एक पुस्तक ही रच गया और उसका कंक्लूजन निकला विवाह जीवन में बाधक है तो साधक भी है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है।
अब बताइए, भीड़ में गाड़ी घुसा करके हॉर्न मार करके और फिर भीड़ से निकलना, ये भी एक आनंद हो सकता है, आनंद है। और बाईपास थोड़ा लंबा है पर आराम से हम शांति से भी जा सकते हैं। ये समाज की अभी ज्वलंत समस्या है, बहुत ज्वलंत समस्या है। ज्यादा युवक आते हैं বিয়ে করব কি করব না, এখন তো কাজ করছি না, কাজ করলেও তারপরে বউ কি রকম হবে, हो भी जाएगा, पर यही सब चिंतन मनन चलते रहता है। जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उससे च्युत हो जाते हैं। माँ पिताजी भी कहते हैं বিয়ে না করলে সৃষ্টি কাজ কি করে হবে, আমাদের এই ধর্মটা আগে কি করে যাবে। अब इस पर भी विचार करना चाहिए। मैया देखो, सृष्टि को चलाने वाला हम सब कोई नहीं है, इस सृष्टि को चलाने वाला कोई और है। सृष्टि के प्रारंभ में कौन था? ये मनु और शत्रुपा, इन्होंने ही सृष्टि का क्रम को आगे बढ़ाया। और अभी थोड़ा पृथ्वी हिल जाए ना, हम लोग जो आमी और आमार गुड़ी, मैं और मेरा करते हैं, ये मेरा बेटा, मेरा समाज, मेरा जाति, मेरा परिवार, मेरा देश, अध्यात्म में मैं मेरा नहीं रहता। कर्म कांड में हम ही अमर कर सकते हैं, ठीक है। हमको कुछ विद्या पाना है तो सरस्वती की पूजा करो, धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करो, शक्ति चाहिए तो दुर्गा की पूजा करो, ब्रह्मचर्य की शक्ति चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करो, उपासना करो। तो जिसको जैसा चाहिए वैसा देवी देवता का आप यजन पूजन करिए। प्रेम चाहिए तो हमारे राधा कृष्ण है ही, उनसे कृपा मांगो। पर अध्यात्म में कोई सीमा नहीं रहती है, कोई बाउंड्री नहीं रहती है। अध्यात्म सिर्फ आत्मा का अध्ययन रहता है, और आत्मा क्या है? यह असीम है, ससीम नहीं है, सीमा में नहीं है। कोई मत, संप्रदाय, मजहब, स्त्री पुरुष लिंग भेद से भी रही थी। तो आत्मा का अध्ययन बहुत आवश्यक है, आत्मज्ञान से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। और आत्मज्ञान के लिए शादी करें कि न करें ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको शक्ति सामर्थ्य है, एक नारी ब्रह्मचारी तो कर सकते हैं। और यदि आपको ब्रह्मचर्य शक्ति है, आप दृढ़ निश्चयी है, तो उससे उत्तम है कि आप विवाह बिना किए भी जीवन को जी सकते हैं। फकीर जी, धर्म के पथ पर चलना ये सहज बात नहीं है। अरे जितने बड़े बड़े तपस्वी हुए वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाते। विश्वामित्र, ब्रह्मा जी आदि जो है स्त्री की मुंह में फंसे। तो कहने का तात्पर्य, हम चाय पीते पीते सोफा सेट पर बैठ करके टीवी देखते देखते धर्म का ज्ञान दे देंगे और हम नहीं फंसेंगे, ये इतनी आसान है क्या? कहने का मतलब है, विवेकानंद जी कहे हैं, एक पथभ्रष्ट सन्यासी साधारण गृहस्थ से 100 गुना श्रेष्ठ है। कि किसी ने चलने का प्रयास तो किया, हिम्मत तो किया। आज हमारे देवेंद्र जी, साथ ही फकीर चंद्र घोष जी, विजय जी, जगत बंधु जी, जनार्दन सिंह, रीना जी, जोदू घोष, ये सब, मनोरंजन जी, बैजनाथ दास जी, महाजन जी जिसके यहाँ रह रहे हैं, उनका बेटा विश्वजीत दास, पुलक मंडल, सुजीत दास, ये सब जो लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में, ये इतना आसान है क्या? कितनी मेहनत से धर्म कर्म यानी भागवत कथा का आयोजन होता है। लोगों को तो लगता है जरूर कहीं ना कहीं पैसा कमाने का धंधा होगा। अरे पैसा कमाना हो, हम भी महाराज अभी यदि काम करने लगे ना, हम FA है, फाइनेंशियल अकाउंट या कुछ भी, या साधारण देवेंद्र जी के होम्योपैथ का डॉक्टरी भी बन जाए, और है भी, करने लगे ना तो इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। और हमारे पास भी बहुत भीड़ रहती थी। कहने का तात्पर्य, जो एक पूंजी लगा करके बिजनेस कर रहे, ये भी ठीक है, बिना पूंजी का बिजनेस है। पर वास्तविक पैसा कमाना हो तो इस लाइन से ज्यादा और भी लाइन है, और ये लाइन में कोई पैसा कमाने नहीं आता। चंदा करके कितना पैसा बचा लेगा। तो कहने का तात्पर्य है
कि धर्म पथ वीरों का पथ है, इसमें दुर्बल आ न सकेंगे। जो जितेंद्रिय है, जो संयमित है, वही आते हैं। तो इस प्रकार सृष्टि प्रारंभ हुआ। इस सृष्टि में मैं मेरा छोड़ दीजिए। परमात्मा जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, आगे भी अच्छा करेंगे, और वही इस सृष्टि को चला रहे। मनु शतरूपा को प्रकट किए। मनु शतरूपा ने कहा कि हम सृष्टि का जो विस्तार करेंगे, तो धरती तो रसातल में चली गई है। तब भगवान विष्णु वराह के रूप में अवतार लिए और वराह के रूप में प्रकट होकर के हिरण्याक्ष से युद्ध किए और इस पृथ्वी को रसातल से ऊपर लाए। बोलते वराह भगवान की, वराह भगवान की। ये हिरण्याक्ष कौन है? भागवत जो लिखा गया है समाधि भाषा में है। ये कहता कुछ है और है और इशारा कहीं और है। हिरण्याक्ष कौन है? तो हमारे आंख में हिरण्य मने सोना सुनहला, अक्ष मने आंख, जिसके आंख में सिर्फ धन दौलत संपत्ति ही है। 100 बीघे तो होगा लो, यदि 200 बीघे हो जाए तो भालो, अरे यदि 1000 बीघे हो जाए तो आरो भालो। इस तरह से वो चाहता कि पूरी दुनिया ही हमारी हो जाए। आकार मोने एटा थाके ना कि भारत भी विश्व गुरु बन जाए। वो तो है, पर विश्व गुरु गुण से बनता। कहने का तात्पर्य है कि जिसके आंख में पूरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है, पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा धन बटोरना चाहता है, वो हिरण्याक्ष ही है। और उसका वध भगवान वराह के रूप में आकर के करते हैं और फिर इसको रसातल से ऊपर निकालते। फिर सृष्टि का प्रारंभ होता है और सृष्टि में जब देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से होता है, तो बेटा के जगह एक एक करके 9 बेटी होती है। ये 9 बेटी क्या है? नवधा भक्ति, 9 प्रकार का भक्ति। अभी हम लोग सुनेंगे 9 प्रकार का भक्ति, जब प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप की कथा में हम लोग सुनेंगे 9 प्रकार की भक्ति। उसमें प्रथम भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अद्वितीय मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग। द्वितीय भक्ति क्या है? गीता पाठ, भागवत पाठ, एका श्रवण करा। और जिसका सबने मिल करके कमिटी वालों ने भागवत पाठ रखा था। शायद ये दूसरा वर्ष है और आगे भी ये चलता रहेगा। और जैसे भी हो, देखो चंदा करने में बहुत मेहनत लगता है, दान में हम उतना घुमा फिरा के नहीं बोलेंगे। भगवान दिया है तो देवेंद्र जी को दे, वो यदि सदुपयोग करेंगे तो परमात्मा उनको आशीर्वाद देंगे, दुरुपयोग देंगे तो वो जाने, उनका काम जाने। इतना बड़ा आयोजन है, सबका विदाई है, लाइट है, बाजा है, तो इसलिए कोई भी कार्य करने के लिए धन की तो आवश्यकता होती ही है। कहते विद्या ददाति विनियम विनियाति याति पात्रत्वां, पात्रत्वां धनम आपनोनि धनम धर्म तथा सुखम। धन से ही धर्म होता है, धर्म करने के लिए भी धन चाहिए और बिना धन का कोई धर्म होता भी नहीं। धर्म ने धारण करना है, हमको चिंतन मनन करना है, पूजा करना है तो मंदिर तो बनाना ही पड़ेगा। पर इसका मतलब नहीं कि सिर्फ हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल बने, मंदिर बने ही नहीं। मंदिर भी मन की बीमारी को ठीक करने का एक साधन है। ये हॉस्पिटल ही है मंदिर। आप जब घर में खूब परेशान हो जाए
দুঃখী হয়ে যায়, ঘর থেকে ঝগড়া হয়ে গেল, আপনি এদিক ওদিক না গিয়ে আগে প্রথমে মন্দিরে আসুন और मंदिर में आकर के थोड़ी देर बैठिए, थोड़ा ध्यान कीजिए, थोड़ा अपने पर विचार कीजिए कि हम क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे, और जिस बात से हम गुस्सा हुए, जिस बात के लिए हमको मरने का मन कर रहा है, आत्महत्या करने का मन कर रहा है, क्या ये सही है? एक बार मंदिर आकर के आप विचार कीजिए, और आपको शांति न मिले तो फिर कहिएगा। अब अभी भी मंदिर में थोड़ा बैठेंगे ना शांत होके, कितनी शांति मिलती है। तो घर में भी एक कोना ऐसा होना चाहिए जहां हम चिंतन मनन करें, जहां थोड़ी देर बैठ करके हम अपने जीवन के लक्ष्य को समझ पाए। हमको तो पता ही नहीं हम क्यों जी रहे हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। क्यों बोलते पारो ना हमारे जीवन के उद्देश्य। कल बोले भी थे कि भगवत प्राप्ति तो सुना जो सुनना, अभी भजन होगा, झांकी आएगा तो बहुत आनंद लगेगा, झांकी आएगी, पर उसके पहले तत्वतः अपने को जान ले, तो फिर हम जहां रहेंगे, जिस देश में वेश में, हमेशा हम परमात्मा के साथ ही रहे, स्थित प्रज्ञ होकर रहे। तो कहने का तात्पर्य कि अपने को जानना जरूरी है, लक्ष्य मेरा क्या है। मान लीजिए कोई मालदा स्टेशन जाए, अब मालदा स्टेशन जाकर के से बोले আমাকে একটা টিকিট দিন তো, আর টিকিট মাস্টার জিজ্ঞেস করবে কোথায় যাবে, বলে আমি কোথাও নয়, আমি যেখানে খুশি সেখানে যাব, আমাকে একটা টিকিট দিন। यदि इस तरह से कोई टिकट मांगेगा तो कहां का टिकट देगा भाई? एक लक्ष्य तो बताना पड़ेगा, एक गंतव्य तो होगा, डेस्टिनेशन तो होगा। और हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कभी दिल्ली के तरफ, कभी मुंबई के तरफ, कभी इधर कभी उधर। ऐसे ही एक आदमी चला गया घर से झगड़ा करके, माल हमारे एक टिकट दी, कोथा का सेखानकार एक खुशी टिकट दी दी, अभी तो बस जाबो। टिकट मास्टर का करेगा नहीं करेगा, वो बोल रांची का एक ट्रेन आ रहा था, बोला जाओ रांची टिकट, তুমি আগে রাঁচি চলে যাও, ওইখানে নিজের মাথা দেখি দাও, কেন কি তোমার মাথাটা এখন ঠিক নাই, তুমি কোথায় যাবে নিজেকে ঠিকই করতে পারো না, আগে রাঁচি চলে যাও, ওইখানে নিজের মাথা ঠিক করো, তারপরে কোথায় যাবে না যাবে আমার কাছে ভেবে চিন্তে আসবে। उसी तरह से हमारा जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, हमको कितना करना है, प्रायोरिटी क्या है, हमारा प्रथम कार्य क्या है, बस जो मन में आया करते चले जा रहे, करते चले जा रहे। और अंतिम समय में क्या होता है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, बुझ गए खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, बुझ गई तो शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। जीवन जब खत्म होता है तब जीने का ढंग आता है, और कई लोगों को तो जीवन खत्म होने तक भी ढंग नहीं आता है कैसे जीवन को जीना चाहिए। देखो हमें क्या बोलना, कहां बोलना, कितना बोलना, ये सीखने में उम्र गुजर जाती है। बोलना तो लोग 4-5 साल में ही सीख जाते हैं, पर कब बोलना, कहां बोलना, कितना बोलना, ये जन्मों लग जाता है सीखने। तो इस प्रकार
9 बेटी हुआ। उसके बाद कपिल भगवान प्रकट हुए। बोल दे प्रेम से कपिल भगवान की, कपिल देव भगवान की। कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दिया। जब माता देवहूति सोचने लगी क्या करूं ना करूं, बहुत सुख होगा पर मन स्थिर नहीं हो रहा है, तब कपिल भगवान ने समझाया, मां ये संसार में सुख नहीं है, असार खलु दर्शनम। संसार क्या है? ये असार है। संश्रयति इति संसारा, जो सरक रही है वही संसार है। संसार परिवर्तनशील है और संसार में सुख है ही नहीं। आप चाहे कितना जप करा लो, तप करा लो, यज्ञ करा लो, आपको सुख तो मिल जाएगा पर शांति नहीं मिल सकती। शांति कैसे मिलती है? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान क्या है? जो भी दिखाई पड़ रहा है सब असत्य है, सत्य तो कोई और है, उस सत्य को समझने से। अब बोलेंगे तब हम लोग जो कर रहे हैं ये बेकार है, ये गलत है। गलत नहीं है। ये क्या है? ये अभी हम लोगों की प्रथम साधना है, प्रथम सोपान। और इस प्रकार से साधना करते हुए मन को बस में नहीं करना। ये कौन कर रहे हैं? कपिल भगवान अपनी मां को, कि मां ये जो